بھاری اخراجات وفاقی حکومت کے پاؤں کی زنجیر بن گئے۔ ملک بھر کے خسارے میں چلنے والے 446 یوٹیلٹی سٹورز بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ مزید 500 سے زائد یوٹیلٹی سٹورز پر بندش کی تفصیلات اس رپورٹ میں۔ وفاقی حکومت کی جانب سے اخراجات میں کمی کے لیے ملک بھر میں 446 یوٹیلٹی سٹورز بند کرنے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق مزید 500 سے زائد یوٹیلٹی سٹورز بند کرنے کا پلان بھی زیر غور ہے۔ ذرائع کا کہنا تھا کہ سٹورز کی بندش کے باوجود کسی ملازم کو نوکری سے نہیں نکالا جائے گا، صرف خسارے میں جانے والے یوٹیلٹی سٹورز ہی بند کیے گئے۔ زیادہ تر دیہی علاقوں میں قائم یوٹیلٹی سٹورز ہی بندش کی زد میں آئے ہیں۔ واضح رہے کہ وفاق نے رواں سال اگست میں یوٹیلٹی سٹورز کے لیے سبسڈی بند کر دی تھی۔ حکومت صارفین کو آٹے، چینی اور گھی سمیت 5 بنیادی اشیاء پر سبسڈی دے رہی تھی۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ ٹوبہ میں فعال 35 یوٹیلٹی سٹورز رینگنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ ماہانہ آمدن 11 کروڑ سے گھٹ کر 4 کروڑ تک آ گئی ہے۔ کرائے، بجلی کے بل اور تنخواہوں سمیت اخراجات کا بوجھ اٹھانا بھی محال ہو چکا ہے۔ مزید سٹورز کو تالے لگنے کا خطرہ منڈلانے لگا۔ تفصیلات مبشر حسن نقوی کی رپورٹ میں۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں فعال 35 یوٹیلٹی سٹورز کی ماہانہ آمدن میں مسلسل کمی آنے لگی۔ ماہانہ آمدن 11 کروڑ روپے سے کم ہو کر 4 کروڑ روپے تک رہ گئی۔ تمام یوٹیلٹی سٹورز کا ماہانہ کرایہ 10 لاکھ اور بجلی بلز 2 لاکھ کے قریب ہے، جبکہ ملازمین کی تنخواہیں 70 لاکھ سے زائد ہیں۔ انتظامیہ کے مطابق یوٹیلٹی سٹورز کے اخراجات پورا کرنا بھی مشکل ہو چکا ہے۔ آمدن نہ ہونے کے باعث بھاری نقصان کا سامنا ہے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ یوٹیلٹی سٹورز پر اشیاء مہنگی جبکہ مارکیٹ میں سستی ہیں۔ سبسڈی نہ ملنے کی وجہ سے یوٹیلٹی سٹورز پر آنا چھوڑ دیا ہے۔ یوٹیلٹی سٹورز پر سبسڈی نہ ہونے کے باعث صارفین نے ادھر کا رخ کرنا چھوڑ دیا۔ کیمرہ مین فخر عباس کے ساتھ مبشر حسن نقوی، سٹی 41، ٹوبہ ٹیکسنگ۔ اب آپ کو بتائیں، ادارہ شماریات نے مہنگائی کی ماہانہ رپورٹ جاری کر دی۔ مہنگائی کی ماہانہ شرح میں اضافہ، لیکن نومبر 2024 میں مہنگائی 78 ماہ کی کم ترین سطح پر آ گئی۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں جانیں۔ رواں سال نومبر میں مہنگائی کی شرح میں 0.49% اضافہ۔ گزشتہ ماہ مہنگائی کی شرح 4.68% رہی۔ نومبر 2024 میں مہنگائی 78 ماہ کی کم ترین سطح پر آ گئی۔ شماریات کے مطابق جولائی سے نومبر تک مہنگائی کی شرح 7.88% رہی۔ اکتوبر 2024 میں مہنگائی کی شرح 7.2%۔ ادارہ شماریات کی ماہانہ رپورٹ کے مطابق نومبر میں شہروں میں مہنگائی کی شرح میں 0.49% اور دیہاتوں میں 0.48% اضافہ ہوا۔ کمشنر فیصل آباد کاشتکاروں کے حقوق کے لیے متحرک سلوت سعید کی صدارت میں گنے کے کرشنگ سیزن پر عمل درآمد سمیت گندم کی بوائی کا اجلاس۔ کسانوں کو 10 یوم میں بقایا جات کی ادائیگی کرنے کا بھی حکم سامنے آیا ہے۔ تفصیلات وقاص بیگ کی رپورٹ میں دیکھیے۔ کمشنر فیصل آباد سلوت سعید کی زیر صدارت گنے کے کرشنگ سیزن پر عمل درآمد سمیت گندم کی بوائی کا جائزہ اجلاس۔ چاروں اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز کو گنے کے کاشتکاروں کو 10 یوم میں بقایا جات کی ادائیگی کرانے اور کسانوں کو ادائیگی نہ کرنے والے شوگر مل سیل اور ان کی انتظامیہ کے خلاف مقدمات درج کروانے کا حکم دے دیا۔ کمشنر سلوت سعید نے کہا کسانوں کو ادائیگی نہ کرنے والی مل سے چینی کا اسٹاک ضبط کریں اور نیلام کر کے کسانوں کو ادائیگی کرائی جائے۔ کسانوں کو ادائیگیاں نہ کرنے والی شوگر مل کو گنا فروخت نہ کرنے کی تشہیر کریں۔ کرشنگ شروع نہ کرنے والی ملز کی انتظامیہ کے خلاف بھی ایکشن لیا جائے۔ ڈپٹی کمشنر کسانوں کی آواز بنی اور ملز کا قبلہ درست کرائیں۔ کمشنر سلوت سعید کا مزید کہنا تھا کہ وزن کے کنڈوں کی مسلسل انسپیکشن کی جائے۔ اجلاس میں ڈپٹی کمشنر فیصل آباد کیپٹن ندیم ناصر، ڈائریکٹر زراعت چودھری خالد محمود، ڈپٹی ڈائریکٹر حافظ عدیل احمد بھی شریک ہوئے۔ کیمرہ مین محمد عثمان کے ساتھ وقاص بیگ، سٹی 41، فیصل آباد۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ جھنگ میں میونسپل کمیٹی فیسکو کے بھاری بلوں سے نہ بچ سکا۔ پمپنگ سٹیشنز کو سولر پر منتقلی کا منصوبہ فائلوں میں دب گیا ہے۔ میونسپل کمیٹی کا 6 کروڑ سے زائد کا بجلی بل درد سر بن گیا ہے۔ ڈسپوزل اسٹیشنز کے پمپس کو شمسی توانائی پر منتقل کرنے کے لیے منصوبہ بنایا گیا تھا، مگر تاحال کوئی پیش رفت نہ ہو سکی۔ تفصیلات رمضان مرزا کی رپورٹ میں۔ جھنگ میں میونسپل کمیٹی کے لیے بجلی کے بھاری بھرکم بلوں سے نجات پانے کی کوشش پر کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی۔ ڈسپوزل اسٹیشنز کے پمپس کو شمسی توانائی پر منتقل کرنے کے لیے منصوبہ بنایا گیا۔ اس منصوبے پر پیش رفت نہ ہونے سے پمپس فیسکو کے بجلی کنیکشنز پر ہیں۔ میونسپل کمیٹی کو 6 کروڑ روپے سے زائد کا بجلی کا بل ایک بڑا چیلنج بن گیا۔ بجلی کے اخراجات کو کم رکھنے کے لیے ڈسپوزل اسٹیشنز کا بند رکھنا معمول بن چکا ہے، جس سے سیوریج جیسے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ جو ڈسپوزل بنے ہوئے ہیں جو بند کے ساتھ ہے، یہ اکثر بند رہتے ہیں۔ ان کو یہ سولر سسٹم پہ کر دینا تو بہت بہتر ہوگا، ورنہ گلیوں میں پانی کھڑا رہتا ہے، لوگ بہت پریشان ہیں، گزرنے کی جگہ بھی نہیں ہوتی۔ اس کو ڈسپوزل جو ہے یا اس کو بالکل ہی بند کر دیں یا پھر اس کو سولر پہ کر دیں۔ نمازیوں کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے، ہر محلے میں ہر گلی میں پانی کھڑا ہے، جبکہ
डिस्पोजल को ये सोलर पे कन्वर्ट किया जाए। डिप्टी कमिश्नर जंग से रिक्वेस्ट करता हूँ हमारा जल्द से जल्द मसला हल किया जाए। मंसूबे के तहत शहर के 14 डिस्पोजल स्टेशंस में से पहले मरहले में 4 को सोलर तवानाई पर मुंतकिल किया जाना था। दूसरे मरहले में मजीद 4 स्टेशंस को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने का मंसूबा था, लेकिन ये मंसूबा फाइलों तक महदूद रहा। कैमरामैन अली और अजीम के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 झंग। और अब आपको बताएं कि कमालिया संधेरिया वाली में इब्रार चैलेंज ट्रॉफी मुकाबला शहसवारान का फाइनल। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने मीडिया से गुफ्तगू की है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। ये मैं कोई आज नहीं आया, जो मेरे फादर इन लॉ थे सेनेटर पीर इसरार हुसैन शाह साहब, उस वक्त भी मैं एज चीफ गेस्ट आया था। और एक मैं समझता हूँ इस मुल्क में जो घुटन है और जो लोगों में बददिली है, तो ऐसे मेले होने चाहिए ताकि लोग एंटरटेन हो सके, यूथ एंटरटेन हो सके और उनकी तवज्जो कंस्ट्रक्टिव हो, डिस्ट्रक्टिव ना हो। मैं ये चाहूँगा कि मैं उनसे गुजारिश करूँगा, क्योंकि अब ये सूबाई डोमेन में आ गया है, तो उनसे भी मैं कहूँगा कि जो स्पोर्ट्स हैं, जो गेम्स हैं, उसको प्रमोट किया जाए और सरकारी सतह पर बनाया जाए। चिनियोट शहर में 2 पार्कों की तामीर का संगे बुनियाद रख दिया गया। वफाकी वजीर कैसर अहमद शेख ने मंसूबे का इफ्तिताह किया। डिप्टी कमिश्नर सफीउल्लाह गोंदल मौजूदीन इलाका भी हमरा थे। कहा शहर में पार्क्स और बागात की कमी थी, नए पार्क्स बना रहे हैं। तफसीलात वकार घुमन की रिपोर्ट में देखिए। वफाकी वजीर बहरी अमूर कैसर अहमद शेख ने चिनियोट में 2 नए पार्कों का संगे बुनियाद रख दिया। पार्क्स में फातिमा लेडीज पार्क और इरफान कैसर शेख मरहूम पार्क शामिल हैं। डिप्टी कमिश्नर चिनियोट सफीउल्लाह गोंदल, मुख्तलिफ महकमों के अफसरान और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कैसर अहमद शेख ने कहा चिनियोट में मजीद पार्क और खेल के ग्राउंड तामीर कर रहे हैं ताकि शहरियों को सेहत बख्श और खुशगवार तफरीह के मौके फराहम किए जा सकें। मैं ये समझता हूँ कि एक बड़ा कामयाब मनसूबा इसलिए है, मेरे मरहूम बेटे इरफान कैसर शेख के नाम से हम ये पार्क बना रहे हैं और ये लोगों की सहूलत होगी, सुबह और शाम वॉक करेंगे। और ये इलाके में जो ये खासकर पोल्यूशन बढ़ रहा था ना, आप देख रहे हैं कि हमारे इलाकों में ज़्यादा से ज़्यादा जो ये धुंध और फिजा जो ख़राब हो रही है, उससे बेहतरी आएगी बागात के बनने में। वफाकी वजीर बहरी अमूर कैसर अहमद शेख की चिनियोट में खुली कचहरी। वापडा, सुई गैस, पुलिस, बल्दिया, पाकिस्तान रेलवे और दीगर वफाकी और सूबाई महकमों के अफसरान ने शिरकत की। खुली कचहरी में ज्यादातर शिकायत का ताल्लुक वापडा, गैस, सफाई, सेहत और शहरी सहूलियात से मुताल्लिक था। कैसर अहमद शेख ने खवातीन में शादी के तोहफा के तौर पर सिलाई मशीन भी तकसीम की। मुस्तहिक मरीजों को मुफ्त इलाज और अद्वियात फराहम की गई और दीगर जरूरतमंद अफराद की माली इमदाद भी की गई। कैमरामैन अलीजेब के साथ वकार गुमन, सिटी 41 चिनियोट। और अब आपको बताएं कि पंजाब सरकार इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकली के लिए मुतहरिक है। वज़ीर आला ने लोकल गवर्नमेंट एक्ट के मुसवदे की मंजूरी दे दी, जबकि बल्दियाती इंतखाबात के लिए यूनियन काउंसिल्स की तादाद में इजाफा। इलेक्शन 2025 के वसत में जमाती बुनियादों पर कराए जाने का इम्कान है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। बल्दियात के हवाले से अहम खबर, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने बल्दियाती एक्ट मंजूर कर लिया। काबीना और पंजाब असम्बली की मंजूरी के बाद एक्ट बन जाएगा। इसके बाद इलेक्शन कमीशन हल्का बंदिया करेगा। बल्दियाती नुमाइंदगान का बड़ा देरीना मुतालिबा था और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम बल्दियाती नुमाइंदगान को और बिलखसूस वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा का, कि जिन्होंने लोकल गवर्नमेंट एक्ट को 2013 वाला जो था उसमें मामूली अमेंडमेंट्स के साथ इसको मंजूर करके अब अगले मराहिल के लिए इसको काबीना में आएगा। वाज़ेह है कि 2013 का एक्ट मामूली तब्दीली के साथ बहाल किया गया है। 25,000 की आबादी पर यूनियन काउंसिल कायम होगी। यूनियन काउंसिल की तादाद में इजाफा और जमाती बुनियादों पर इंतखाबात होंगे। उम्मीद की किरण रोशन हो गई है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, मैं समझता हूँ कि पंजाब के 58,000 बल्दियाती नुमाइंदगान पर बहुत बड़ा एहसान और मेहरबानी होगी और आवाम के लिए बड़ी ये बात खुश आइंद है, ताकि वो इस बल्दियात के इलेक्शंस के जरिए अपने हकीकी नुमाइंदगान का इंतखाब करेंगे और बल्दियाती मसाइल के हल के हवाले से आवाम को बेहतरीन रिलीफ मिलेगा। लीगी ज़राए के मुताबिक पंजाब हुकूमत बल्दियाती निज़ाम के लिए संजीदा है और 2025 के वक्त में इंतखाबात का इनेकाद मुतवक्की है। कैमरामैन ईमान भट्टी के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41 फैसलाबाद। अब आपको बताएं चिनियोट पर किस्मत की देवी मेहरबान, पंजाब सरकार ने खजाने के मुंह खोल दिए। जबकि 53 किलोमीटर तवील झंग रोड की तामीर शुरू कर दी गई है। मंसूबे पर 38 करोड़ रुपए लागत आएगी। तफसीलात बाबर मुनीर की रिपोर्ट में देखिए। बिलाखर मेन झंग रोड की तामीर भी शुरू हो गई। 53 किलोमीटर तवील झंग रोड की तामीर पर 38.5 करोड़ रुपए लागत आएगी। सड़क की तामीर रवां मालियाती साल के दौरान ही मुकम्मल होगी।
मंसूबे के दौरान मेन झंग रोड को उखाड़कर तकरीबन 7 इंच की नई लेयर बिछाई जाएगी। ठेकेदार ने बुहाना साइड से तामीराती काम शुरू कर दिया। झंग रोड पर हैवी गाड़ियों की आमदोरफ्त के बायस बनी स्लाइडें हादसात का सबब बनती थी। नए रोड की तामीर से हादसात में भी कमी आएगी। शहरियों ने मेन शाहराहों की तामीरात पर इजहार मुसर्रत किया। रोड की तामीर जल्द मुकम्मल कराने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। और अब आपको बताएं कि महकमा सुई गैस को कॉन्ट्रैक्ट पर प्राइवेट गाड़ियां फराहम करने वाले मालिकान और ड्राइवर्स का मुआवजा न बढ़ाने के खिलाफ एहतजाज रैली भी निकाली। मुतासरीन कहते हैं 8 साल से मुआवजा नहीं बढ़ाया गया। मुतालिबात की मंजूरी तक डिवीजन भर में हड़ताल जारी रहेगी। तफसीलात उमैर अजमत की रिपोर्ट में। महकमा सुई गैस को इस्तेमाल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर गाड़ियां फराहम करने वाले मालकान और ड्राइवर मुआवजा न बढ़ाने पर सरापा एहतजाज बन गए। मुजाहिरीन का कहना था कि 2016 से हमें गाड़ी और ड्राइवर समेत सिर्फ 1100 रुपया यौमिया मुआवजा दिया जा रहा है। 8 साल गुजरने के बावजूद मुआवजे में इजाफा नहीं किया गया, जबकि इस अरसे में गाड़ियों की कीमतें 3 गुना बढ़ चुकी हैं। 2025 आ गया तकरीबन इन्होंने साढ़े पैसे 1550 रुपए इनक्रीज किए, 450 रुपए तकरीबन बनते हैं। सानू ये मंजूर नहीं है, जिन्नी महंगाई हो गई है, जो मतलब मोबाइल चेंज, गाड़ी की मेंटेनेंस, जो भी तकरीबन टायर पंचर आ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ तकरीबन काफी इजाफा हो गया। मुजाहिरीन का मजीद कहना था कि ड्राइवर की तनख्वाह और दीगर अखराजात निकाल कर गाड़ी मालकान को कुछ नहीं बचता। हुकूमत ने मजदूर की कम अज कम उजरत तो 37,000 रुपए मुकर्रर कर दी, ताहम हमारी झोली में कुछ नहीं डाला गया। मुतालबात की मंजूरी तक डिवीजन भर में ट्रांसपोर्ट की हड़ताल जारी रहेगी। 1550 रुपए अनाउंस किया है, लेकिन हम फिलहाल हमें 1100 रुपया दे रहे हैं, जिसमें हमने ड्राइवर भी देना है, गाड़ी की मेंटेनेंस भी करनी है और खुद भी अपने घर का भी खर्चा चलाना है। लेकिन इस दौर में, महंगाई के दौर में, हम अपना घर का खर्चा नहीं चला सकते। फैसलाबाद रीजन में महकमा सुई गैस के पास 300 से ज्यादा गाड़ियां कॉन्ट्रैक्ट पर चल रही हैं और हड़ताल के दौरान लीकेज, इमरजेंसी पाइपलाइन बिछाने समेत दीगर ऑपरेशंस के लिए काम मुतासिर हो रहा है। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ उमैर अजमत, सिटी 41 फैसलाबाद। अब आपको बताएं, मुंतखब नुमाइंदे निगरानों का दिया तोहफा ना संभाल पाए। निगरान हुकूमत ने DHQ अस्पताल जंग में पनाहगाह का काम मुकम्मल कराया। जिले इंतजामिया डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की पनाहगाह को ताहाल फाल ना कर सकी। पनाहगाह को ताले लग गए। मरीजों के लवाहिकीन जमीन पर रात गुजारने पर मजबूर हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। जंग में पंजाब की निगरान हुकूमत ने DHQ अस्पताल जंग में पनाहगाह का काम मुकम्मल कराया। जिले इंतजामिया की सुस्ती के बायस पनाहगाह ताहाल फाल न हो सकी। मरीजों के लवाहिकीन जमीन पर रात गुजारने पर मजबूर। कहते हैं इंतजामी गफलत के बायस अवामी टैक्स से बनने वाले मंसूबे भी फायदेमंद नहीं रहते। तीसरा दिन है कि जगह नहीं है, बस जहाँ जगह मिले वहाँ सो जाते हैं, जमीन पर या किधर और कोई जगह ढूंढ लेते हैं। अब उधर रहने की रिहाइश की जगह नहीं है, कोई वो मेहरबानी करेंगे जगह बनाए रहने की। सिटी 41 की निशानदेही पर डिप्टी कमिश्नर अली अकबर बिंडर की जानिब से पनाहगाह को फाल कराने की यकीन दहानी कराई गई और इंशाल्लाह ये अगले 3-4 घंटों में आपको नजर आ जाएगा। सफाई भी इसकी हो जाएगी और ऑपरेशनल हो जाएगा। फिर इंशाल्लाह हम कोई देखते हैं कि फिलैंथ्रोपी वाले बंदे को पकड़ते हैं कि जो लोग पेशेंट के साथ अटेंडेंट आते हैं उनके खाने का भी हम कोशिश करेंगे कि फ्री हम अरेंजमेंट कर दें। तो इंशाल्लाह जल्द इंशाल्लाह ये भी आपको करके दिखाएंगे। अस्पताल में आए मरीजों और लवाहिकीन का पनाहगाह को जल्द फाल कराने का मुतालबा। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ वसीम अजीज, सिटी 41 जंग। और दूसरी जानिब आपको बताएं कि पंजाब फूड अथॉरिटी की सेहत दुश्मन अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। चिन्योट में मुद्रे सेहत अचार यूनिट सील, जायदुल मियाद अशिया पर बेकरी को जुर्माना भी आयद किया गया है। फैसलाबाद में 64 केनाल पर जहरीले पानी से काश्त पालक पर हल चला दिया गया। गोजरा में नाकिस घी और मक्खन मिलने पर यूनिट बंद, मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। नवंबर के दौरान 3300 कार्रवाइयों में मुद्रे सेहत मसनूआत तलब करके शहरियों की जान बचाई। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। एडिशनल डायरेक्टर ऑपरेशंस फूड अथॉरिटी तारिक महमूद गुल का दौरा चिन्योट। फूड सेफ्टी टीमों के हमरा अचार बनाने वाले यूनिट और बेकरी का मुआयना किया। इंस्पेक्शन के दौरान 1000 किलो फंगस आलूद अचार तलब कर दिया। गंदे ड्रमों और चूहों की मौजूदगी पर यूनिट को सील कर दिया गया। मारूफ बेकरी को नाकिस सफाई इंतजामात और जायदुल मियाद अशिया की मौजूदगी पर 50,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया। तारिक महमूद गुल का कहना था कि मिलावट और जालसाज माफिया किसी रियायत का मुस्तहिक नहीं। पंजाब फूड अथॉरिटी ने फैसलाबाद में 64 कनाल पर जहरीले पानी से काश्त हजारों किलोग्राम मुजरे सेहत सब्जियों को हल चलाकर तलब कर दिया। अरशद टाउन के तरफ में काश्त पालक की फसल तलब कर दी गई। सिवरेज के पानी से काश्त सब्जियों को मंडी में सप्लाई किया जाना था। गोजरा में देसी घी और मक्खन के नाम पर जलसाजी। फूड अथॉरिटी गोजरा का न्यू प्लॉट में डेयरी यूनिट पर छापा। नाकिस घी और मक्खन मिलने पर यूनिट सील करके मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। फूड अथॉरिटी की टीम ने गैर मयारी क्रीम की भारी मिकदार भी जाया कर दी।
पंजाब फूड अथॉरिटी ने नवंबर के दौरान 3,300 से ज्यादा यूनिट्स का मुआयना किया। 1,115 यूनिट्स को इस्लाहाती नोटिस, 349 यूनिट्स को 56 लाख जुर्माना किया गया। संगीन खिलाफ वर्जियों पर 6 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज। 18 प्रोडक्शन यूनिट्स इस्लाहात तक बंद किए गए। 1,580 दूध बरदार गाड़ियों की चेकिंग के दौरान 79 गाड़ियों को नाकिस दूध पर जुर्माना, 6,000 लीटर नाकिस दूध तलफ, 1,17,000 रुपए जुर्माने आयद किए गए। 400 किलो नाकिस गोश्त, 7,000 लीटर नाकिस दूध, 26 किलो मसाला जात भी मौके पर तलब करके शहरियों की मुजर सेहत अशिया की फराहमी से बचाया गया। दी यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद का 11वां कॉन्वोकेशन, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की खुसूसी शिरकत। चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स मोहम्मद हैदर अमीन, रेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर अमानुल्लाह मलिक और दीगर भी शरीक हैं। कॉन्वोकेशन में 1,794 तलबा को इसनाद जारी की गई, जबकि 87 तलबा में मेडल्स भी तकसीम किए गए। देखते हैं जहांगीर अशरफ की ये रिपोर्ट। यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद के 11वें कन्वोकेशन में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने खसूसी शिरकत की और तलबा में 20 सलीम गोल्ड मेडल, 47 मुख्तार सिल्वर मेडल और 20 अमीन ब्रॉन्ज मेडल तकसीम किए। मैंने डेंटल टेक्नोलॉजी में गोल्ड मेडल जो है वो लिया है और इसका क्रेडिट सबसे पहले अल्लाह ताला को जाता है और उसके बाद मेरे पेरेंट्स को जाता है और मेरी फैमिली को जाता है जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया। आज मैंने अपना मेडल विन किया है तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। इस सारे जो इवेंट था इसमें अपने पेरेंट्स के साथ उनकी बहुत सारी एफर्ट्स मेरे साथ थी। कॉन्वोकेशन में 17 पीएचडी डॉक्टर्स को भी डिग्रियां अवार्ड की गयी। मेडल हासिल करने वालों में हमना शाहिद, मुनीबा अमजद, आयशा नूर, नूरुलैन अरशद, आयशा अहमद, ईशा जावेद, मेमूना नदीम व दीगर शामिल थीं। Today I am achieving my dreams. I think so it is fulfill my achievements. As a gold medalist, I know first of all I would like to thank Allah Almighty for this achievement, my parents and my family and my friends. इस जर्नी को फुलफिल करने के लिए आपको बहुत सी डिटर्मिनेशन के साथ चलना पड़ता है और ये मेडल इसी चीज़ की डिटर्मिनेशन को शो करता है कि आप किस तरह से इन स्टेप्स के गुजरते हैं तो वो आप अपने आप को प्रूव करवा लेते हैं इन चीज़ों के साथ। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कहा, तलबा में डिग्रियां और मेडल तकसीम करना एजाज की बात है। बेटों से कहता हूं तगड़े हो जाएं। लड़कियां हर मैदान में आगे निकल रही हैं। वालिदैन को सलाम पेश करता हूं जिन्होंने अपना पेट काट कर बच्चों को पढ़ाया। गवर्नर पंजाब ने पाक अफवाज के शोहदा के लिए दुआ भी करवाई। हमारे हालात के मुताबिक मैं ये समझता हूँ कि बड़ा मुश्किल है अपने बच्चों और बच्चियों को तालीम के मेयार में खासकर हायर एजुकेशन में सपोर्ट करना, लेकिन यकीनन आप मुबारकबाद के मुस्तहिक भी हैं। आपको सलूट भी किया जा सकता है कि आपने अपना पेट काट के अपने बच्चों और बच्चियों को तालीम में जो है वो आगे बढ़ने का मौका दिया। तो ये जो कमज़ोर लोगों के लिए स्कॉलरशिप्स और उनके दर्द को महसूस करना है, असल में अचीवमेंट यही है। कॉन्वोकेशन में चेयरमैन मदीना फाउंडेशन मियां हनीफ, चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स मोहम्मद हैदर अमीन, रेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर अमानुल्लाह मलिक, रजिस्ट्रार डॉक्टर ज़ाहदा मकबूल ने भी शिरकत की। यूनिवर्सिटी में 20 साल और 10 साल तक सर्विस करने वाले फैकल्टी मेंबरान और दीगर मुलाजिमीन में भी अवार्ड तकसीम किए गए, जिनमें नाजिश, डॉक्टर हुमैरा, डिप्टी रजिस्ट्रार औरंगजेब, मोहम्मद इस्माइल, ताहिर महमूद, आसिमा नाज, असद अफरीदी, राना मुमताज और दीगर शामिल थे। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ जहांगीर सिटी 41। वेलकम बैक। अब आपको बताएं, स्टेप स्कूल फैसलाबाद में पीटीएम और ओपन हाउस का इनाकाद किया गया। तलबा की जानिब से रोबोटिक और साइंस के मॉडल्स की नुमाइश की गई। इंतजामिया ने एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग समेत स्कूल की दीगर सहूलियात डिस्प्ले की। वालिदैन और तलबा ने स्कूल का तफसीली दौरा किया और तालीमी मियार को सराहा। तफसीरात जहांगीर अशरफ की इस रिपोर्ट। स्टेप स्कूल फैसलाबाद में पेरेंट टीचर मीटिंग और ओपन हाउस का इनेकाद किया गया ताकि वालिदैन को बच्चों की तालीमी कारकर्दगी और स्कूल की कारकर्दगी से मुतल्लिक आगाही फराहम की जा सके। डायरेक्टर मोहम्मद इकराम अहमद, प्रिंसिपल महक सुहेल व दीगर असातिज़ा ने विजिट करवाया। जैसे कि आपने देखा होगा, पेरेंट्स भी हमारे विजिटर्स भी देख रहे हैं कि हमने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स डिस्प्ले किया करवाए हुए हैं। उसमें रोबोटिक्स की तरफ हमारा बहुत ज़्यादा फोकस है। बाकी सब्जेक्ट में भी हम प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग पे ही फोकस करते हैं। बच्चों ने पार्टिसिपेट किया हमारे इसमें, उनका बहुत मशकूर हूँ और कोशिश करेंगे कि उनके एतमाद को इसी तरह ही बहाल रखें। ओपन हाउस में तलबा की तरफ से रोबोटिक और साइंस मॉडल की नुमाइश की गई। स्कूल इंतजामिया ने एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग समेत स्कूल की दीगर सहूलियात डिस्प्ले की। आज today was parent teacher conference and I had actually very much fun today. I didn't expect it to be such a... It's the best school I've ever read in, and today was the parent-teacher conference. We were here to guide the parents to the classes and maintain a proper discipline, and I'm proud of myself. वालिदैन और तलबा को लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, साइंस लेबॉर्ट्री और क्लासरूम्स का विजिट करवाया गया। शुरा ने ओपन हाउस के मौका पर स्कूल का तफसीली दौरा किया। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ जहांगीर अशरफ, सिटी 41।